नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे आई एम हेयर विद माय टॉपिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ. सो लेट्स स्टार्ट today's topic, our article number 2. Coulomb's law. From the experiment of torsional balance, Coulomb observed that the force between two-point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of separation between them. कूलम्ब ने टॉर्सनल बैलेंस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके दो थ्रेड ले लिए मासलेस, दो आइडेंटिकल थ्रेड ले लिए मासलेस, ठीक है। आइडेंटिकल मास के बॉब हैं, इनके ऊपर चार्ज दे दिया Q1 Q2, वैक्यूम की बात कर रहा है। तो जैसे ही सडनली चार्ज अप्लाई किया गया, तो अगर वो चार्ज लाइक नेचर है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between the 2-point charges is given by this formula, which is given by Coulomb's. The magnitude of force between 2-point charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of separation between them. As we supply the charge on this identical bobs, so in the vacuum region they are observed like this. Say this is Q1, this is Q2, say separation R between them. So the force on Q1 due to Q2 is like in this direction, so we can say force on 1 due to 2, and similarly force on 2 due to 1. Then we have to calculate the magnitude of the force between the 2-point charges. It is given by the formula, and it is the mathematical form of Coulomb's law. So further we can also it is the proportionality constant, so we remove and put here K. K is, according to mathematics, it is an proportionality constant, but according to this law it is an Coulomb's constant. Coulomb's constant. So there are very few important point regarding the Coulomb's law. First of all, K is Coulomb's constant. It is not a universal constant. It is not a universal constant. It is not a universal constant, because if we change the medium between the charged particle, then the value of K also changes. Hence it is depend on the medium which is intervening between the 2-point charges. It depends on the medium between the charged particle. It depends on medium between charged particles. Or we can say its value is different for different medium, because the value of K is found 1 by 4 pi epsilon naught, and it is called electrical permittivity. Of, अब हम बात कहाँ की कर रहे हैं, वैक्यूम की, तो ये वैक्यूम के लिए आ जाएगी, या फ्री स्पेस की बात कर लेंगे। इफ़ वी चेंज द मीडियम देन इट इज़ चेंजेज। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे मीडियम का जो भी कांस्टेंट है वो आ जाएगा। कहने का मतलब के की जो वैल्यू है, इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल कांस्टेंट, बट इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. Second point,
Second important point is that value of K, कूलाम कांस्टेंट की जो वैल्यू है इन फ्री स्पेस इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर फॉर SI सिस्टम, एंड वैल्यू ऑफ K इज सिंपली 1 फॉर CGS सिस्टम। और ये होल्ड करता है वैक्यूम के लिए और एयर के लिए। सिंपली द वैल्यू ऑफ K इन SI सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ K for in CGS system is simply 1 for both of these. And the third main point is Q1 and Q2 are static point charge. Static point charge. Q1 और Q2 जो हम लेके चले हुए हैं वो पॉइंट चार्ज के लिए होल्ड करता है ये। ओके, एंड मैंने अभी बोला Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्जेस, मीन्स इसका मतलब क्या है, उनका जो साइज है, पॉइंट चार्जेस का जो साइज है वो उनके बीच के सेपरेशन के सामने नेग्लिजिबल रहेगा। द साइज ऑफ और द शेप ऑफ द पॉइंट चार्जेस शुड बी वेरी वेरी लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दिस फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मैंने अभी बताया था आपको, ये Q1 Q2 है। ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है 2 पे 1 की वजह से, 1 पे 2 की वजह से, ये फोर्स लाई करता है हमेशा चार्जेस के सेंटर के लाइन के अलोंग। इट इज़, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। Central force means this force acts along the line joining between the center of the point charges. पॉइंट चार्जेस के सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलोंग ये मिलेगा। क्लियर? हैंस इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स means the work done by the conservative force is only depend on the initial and final positions but independent on the path, or we can say work done by conservative force in any closed loop always equal to 0। किसी भी चार्ज को क्लोज लूप में मूव करवाने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो कार्य कर होगा वो हमेशा 0 रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप कंजर्वेटिव फोर्स को दो तरीक़ों से पहचान सकते हो। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पे डिपेंड न करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन एनी क्लोज लूप ऑलवेज 0। क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिंपल एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो वी हैव 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 and these are like in nature, so the force is repulsive। रिपल्सिव नेचर की फोर्स इनके बीच में एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट चार्ज को रिप्लेस करता हूँ, इफ वी रिप्लेस पॉइंट चार्ज by a big size sphere, if we replace point charge by a big size sphere, पहला केस है लाइक चार्जेस के लिए। अगर वो चार्जेस लाइक हैं Q1 Q2, तो कहने का मतलब ये है, एक स्फीयर ये आ गया, ये सेंटर है, एक स्फीयर ये आ गया, ये सेंटर है। अब चार्जेस अगर लाइक हैं, अब ये R दूरी है, अब चार्जेस अगर लाइक हैं तो वो रिपेल करके इसकी जो आउटर साइड है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। से दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2। अब आप बताओ, अब सेपरेशन है वो बढ़ गया ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये तो R था, पॉइंट से पॉइंट था, बिकॉज चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट पॉइंट और सेंटर, बट इन दिस केस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट टुवार्ड्स द आउटर रेंज।
जो आउटर जो पेरिफेरी है उस पर बिखर जाएंगे। सो जो फोर्स होगा यहाँ पे एफ डैश वो एफ से कम रहेगा। और इसी का सेकंड अगर मैं बताऊँ, इफ़ चार्ज कैसे हो जाए बच्चों, अनलाइक, तो अनलाइक के केस में क्या रहेगा, सेम केस है, स्फीयर की ही बात कर रहे हैं, तो सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करो। अब अनलाइक में मान लिया इस पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव इसके जो इनर जो पेरीफेरी है उस पर आ जाएगा। अब की बार आर हो कम हो जाएगा तो फोर्स वो डिक्रीज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इफ़ वी रिप्लेस पॉइंट चार्ज बाय ए बिग साइज स्फीयर देन फोर्स मे also vary between the charged particles. So in the next हम इसमें आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ के हम डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ के इज कूलम्ब कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के इज सिंपली डिफाइंड, के इक्वल टू बनेगा एफ आर स्क्वेयर बाय Q1 Q2। फॉर SI सिस्टम द वैल्यू ऑफ के इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम्ब स्क्वेयर, एंड इट्स वैल्यू इज 1 फॉर CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू हो 1 रहेगी। थोड़ा सा फर्दर इसको स्टडी करते हैं। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ in SI system. Here epsilon naught is called electrical permittivity. Electrical permittivity of a free space. अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ 1/4 पाई के, सो आफ्टर कैलकुलेशन we will find out 8.85 10⁻⁻12 एंड रेसिप्रोकल हो जाएंगे। के की जो यूनिट है उसका उल्टा कर दो आप, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी यूनिट। इट इज़ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक नई टर्म यहाँ पे आती है ER। ER को बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये रिलेटिव वर्ड जो यूज़ किया है, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा। एक बार तो मैं वैक्यूम में रखूँगा चार्जेस को, एक बार मैं किसी पार्टिकुलर मीडियम में रखूँगा, तो ये उस मीडियम का रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यूनिट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, and it is also known as K. It is not Coulomb constant, it is the dielectric constant. ओके, तो ये है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। जब हम दो कोरस्पोंडिंग मीडियम का कंपेयर करेंगे ना, तब वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू आपको, या के की वैल्यू, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और के को हम सिंपली डिफाइन ऐसे भी करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम के जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बता रहे हैं उस मीडियम के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे, यह परमिटिविटी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, के या ER इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम, और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है एयर के लिए। एयर के लिए 1 होती है। के की वैल्यू 80 और 81 होती है वाटर के लिए। के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है मेटल के लिए, और के की वैल्यू
लेस देन इन्फिनिटी यानी कि फाइनाइट होती है इंसुलेटर के लिए, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ ई आर लाइज 1 to less than infinity. It is the range of relative electrical permittivity lies from 1 to infinity, lies from 1 to infinity. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब के हम किसी पार्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास के है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो के है या ई आर है ये डायमेंशन लेस होता है प्यारे बच्चों। इसका डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t0 आता है, ठीक है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लिया एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही मेन है, थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 Q2, r दूरी पे उनको रखा गया है। उनके बीच में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो वैल्यू मिली हमें के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं इनिशियली, तो वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। अब अगर मैं इनको उठा के किसी मीडियम में रख देता हूँ, अगर मैं अब इनको उठा के किसी मीडियम में पुट कर देता हूँ, अब आपको पता है मीडियम में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, तो फोर्स अब वो कम हो जाएगी। अब फोर्स को हमें सेम रखना है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो बच्चों। ये वैक्यूम का केस था, ओके। अब मैं इन दोनों चार्जेस को उठा के किसी पार्टिकुलर मीडियम में रख देता हूँ, तो मीडियम में वो फोर्स वो कम हो जाएगी। सर कितना कम होगी, वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें बताएगा। कैसे? चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये मान लिया Q2 है, ये मान लिया Q1 है, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऐसे यहाँ पे जो लिखूँगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, क्या लिखूँ बताओ? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इंटू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगा? अब यहाँ पे जब मैं रेशियो लूँगा इनके बीच का, थोड़ा इसको मैनेज कर लेते हैं। एफ इन मीडियम इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर आर स्क्वायर, बिकॉज फ्रॉम द रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ई आर किसके इक्वल बताया था मैंने बताया था ए ऑफ मीडियम बाई ए ऑफ वैक्यूम। तो मैं इसकी जगह पे इन दोनों को लिख सकता हूँ ना मल्टीप्लाई में, तो मैंने लिख दिया इसको। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये वैल्यू देखो आप, ये क्या आ गया? ये एफ आ गया ना वैक्यूम वाला। तो फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों? फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय ई आर, या इसको के बोल दो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैंने पॉइंट चार्जेस को वैक्यूम से उठा के किसी मीडियम में रख दिया ना, तो मीडियम में वो फोर्स कम हो जाएगा। सर कितना कम होगा? वो 1 बाय एप्सिलॉन 1 बाय ई आर या 1 बाय इलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम कम हो जाएगा। अब ये कम कितना होगा, ये डिपेंड करेगा वो जो मीडियम है वो किस टाइप का उसका नेचर है, यानी कि उसकी जो के की वैल्यू है वो हमें बताएगी कि कितना फोर्स है वो कम होगा। मेरा सिंपल मतलब यहाँ पे कहने का ये था, व्हेन पार्टिकल आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम देन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है, बट नेट फोर्स विल बी 1 बाय के टाइम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर हम किसी जो नेट फोर्स रहेगा, वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? वो 1 बाई के टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब वो जो भी मीडियम होगा, जो भी उसका नेचर होगा, वो के उस नेचर के हिसाब से वेरी करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब हम कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही मेन रहेंगे, बट बेसिक हैं, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। तो मैं क्वेश्चन को एक बार सिंपल रीड आउट करता हूँ। सो देयर आर 2 स्मॉल स्फीयर इक्वली चार्ज्ड एंड सेपरेटेड बाय आर। वी हैव 2 इक्वल पॉइंट चार्ज, इक्वल मेटालिक स्फीयर हैं, बहुत स्मॉल साइज के, इनके सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आर है, और दोनों पे इक्वल चार्ज है। से इस पे भी चार्ज क्यों है, इस पे भी चार्ज क्यों है। ओके, आइडेंटिकल बोल दिया गया भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन दैम इज एफ। इनके बीच में जो फोर्स था वो कितना था? एफ, यानी कि के
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूँ ना प्यारे बच्चों। टू आइडेंटिकल इक्वली चार्ज स्फीयर separated by distance r, then the force on each sphere is F. This is from the mathematical formula is, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या, इफ़, इन्होंने क्या बोला, इफ़ 50% चार्ज क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफ़र कर दिया प्यारे बच्चों। If 50% charge is transferred from one to another, charge transferred from one to other, 50% चार्ज मान लिया ये A है, ये मान लिया B है। तो अगर मैं चार्ज को ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पे, अगर मैं चार्ज को यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा तो बताओ 50% चार्ज जाने के बाद इसके पास कितना बच गया प्यारे बच्चों, इसके पास तो Q/2 बच गया। अब फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, आफ्टर ट्रांसफरिंग द 50% का मतलब होता है आधा, तो इसके पास कितना बच गया Q/2। उसके पास Q था और Q/2 पहले फिर बाद में आ गया इस वाले का, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं 3Q/2 एंड सेपरेशन रिमेन्स सेम। देन द न्यू फोर्स, बताओ कितना कितना घटा है कि बढ़ा, तो क्या करूँ बताओ, Q/2 3Q/2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो कितना लिखूँ प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं, 3K/Q² / 4R²। ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो आप, ये तो F की वैल्यू आ गई ना प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, F न्यू, जो नया फोर्स आया फाइनल सिचुएशन के बाद वो कितना हो गया, 3/4 टाइम ऑफ F। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलो और ट्राई करते हैं नेक्स्ट, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए इसमें। मान लिया हमारे पास कोई दो मेटालिक स्फीयर हैं, उनको r दूरी पे सेपरेट किया गया है। ये मान लिया A है, ये मान लिया B है। इस पे चार्ज है +Q, इस पे चार्ज है -Q। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन F है इनके बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड। हम एक बार लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखूँ, KQ² / R²। क्लियर है मेरी बात, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब इन्होंने फाइनली क्या बोल दिया गया, इन्होंने फाइनली बोल दिया प्यारे बच्चों 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B। A से B 25% चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया गया। देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेज। तो क्या लिखूँ मैं, अब 25% का मतलब Q/4 मतलब इस पे कितना बच गया प्यारे बच्चों, देखना एक बार, इस पे और इस पे। ये फाइनल सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये Q में से कितना चला गया, Q/4। यहाँ पे -Q पहले था, कितना आ गया यहाँ पे Q/4। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पे 3Q/4 एंड ये कितना हो जाएगा -3Q/4 एंड द फाइनल न्यू फोर्स वी कैन राइट, क्या लिखें इसको, K 3Q/4 × 3Q/, हम डील करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ, R²। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 9KQ² / 16R²। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी इनिशियल फोर्स। तो प्यारे बच्चों F न्यू = 9/4 ऑफ F। ये पहले जैसा ही क्वेश्चन दे दिया मैंने जस्ट आपको। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे है अच्छा। ये मान लिया किसी बॉडी पे चार्ज Q था, टोटल चार्ज Q था, प्लस इस बॉडी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया। टोटल चार्ज Q, ये जो Q चार्ज था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया प्यारे बच्चों, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। और ये जो 2 टुकड़े बन गए इसमें से, इसको किसी फिक्स दूरी पर रख दिया गया। फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उसको पे रख दिया गया। दोबारा मेरी बात को समझो, कोई भी बॉडी है उस पर चार्ज Q था, उस बॉडी को ब्रेक कर दिया गया 2 पार्ट में,
और वो जो दो उसके फ्रेगमेंट बने उनको किसी फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया गया। तो अब मान लो इस पे चार्ज चला गया Q, इस पे चार्ज कितना बच गया है Q माइनस Q। तो इस स्मॉल चार्ज की क्या वैल्यू हो, इस स्मॉल चार्ज की क्या वैल्यू हो कि इनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम रहे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल चार्ज Q, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्मॉल चार्ज Q सच दैट द फोर्स बिटवीन दीज टू इज मैक्सिमम। इनके बीच में फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। then what will be the value of what is value of small charge Q for which the force between them is maximum। बड़ा ही मेन क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सो इनके बीच में डिस्टेंस को मैंने r मान लिया, तो लिखते हैं, अप्लाई करते हैं कूलम्ब्स लॉ। F इक्वल टू के Q माइनस Q इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक बात आप देखो, जब कभी भी मैक्सिमम की बात आएगी ना कि मैक्सिमम फोर्स बताओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, फोर्स डिपेंड करता है यहाँ पे Q चार्ज पे, क्योंकि R तो फिक्स कर दिया ना, K वैसे ही कांस्टेंट है। टोटल Q चार्ज हमें गिवन था, हमारे पास वेरिएबल वैल्यू किसकी है, Q की। तो इसका मतलब जो ये फोर्स है ये इस Q पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम की कंडीशन क्या रहेगी हमारे लिए, मैं इस फोर्स का इस चार्ज के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके पुट कर दूंगा 0 के इक्वल। इट इज़ द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम फोर्स। सिंपली इसको अप्लाई करते हैं। अभी क्या लिखें इसको, dF/dQ बराबर है, क्या करूँ मैं, K और R स्क्वायर को तो बाहर निकाल लूँगा ना मैं, तो d/dQ कितना बन गया हमारे पास, Q माइनस Q स्क्वायर और इक्वल टू पुट कर देंगे 0 एंड दिस वैल्यू ये 0 में चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव किया तो Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, हैंस Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/2। ये जो न्यू चार्ज आया है ना यहाँ पे, ये टोटल चार्ज का हाफ होना चाहिए, तब जाके इन दोनों के दोनों फ्रैक्शन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे रेशो भी पूछ सकता है आपसे, रेशो। अब एक बात बताओ, अगर इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे Q/2 आ गई तो ये भी तो कितना बच गया रिमेनिंग, ये भी तो Q/2 है ना। तो ये रेशो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है प्यारे बच्चों। अब एक छोटा सा मैं कंसेप्ट यहाँ पे आपसे के साथ डिस्कस करता हूँ। मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उनको हमने एयर में रखा हुआ है R सेपरेशन पे। मैं एक बार आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। ये Q1 है, ये Q2 है, R दूरी पे रख दिया वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर, तो इनके बीच में जो फोर्स था वो कितना आया, K Q1 Q2/R स्क्वायर। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर है? यस। अब इनको मैंने किसी मीडियम में लेके चला गया, मान लिया मैं लिक्विड में लेके चला गया इनको मैंने डिप कर दिया। द होल अरेंजमेंट इज डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ER, ओके, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑल्सो के, ठीक है, या तो ER बोल दो या K बोल दो, एक ही बात है। व्हाट शुड बी द सेपरेशन बिटवीन देम, सो फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज अगेन F। अब इनको इस मीडियम में रख दिया गया ना, अब इनको इस मीडियम में रख दिया गया। अब एक बात बताओ आप, प्रीवियस कंसेप्ट से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब 2 पॉइंट चार्ज जो एयर में रखे गए थे ये वाले, इनको जब किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स घटता है ना प्यारे बच्चों, बताया था मैंने आपको, फोर्स कम हो जाता है। कितना कम होता है वो जो वैक्यूम में जो फोर्स आता है उसका 1/k टाइम कम घट जाता है। अब इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इन्होंने बोला कि अब इन दोनों चार्जेस को जब हमने किसी लिक्विड में डिप किया है तो इनके बीच में फोर्स तो कम होगा, लेकिन इसने बोल दिया कि फोर्स है जो अब जो आएगा F' वो F के बराबर बोला, इन्होंने खुद बोला है। अब अगर फोर्स को सेम रखोगे तो आपको दूरी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्सली वेरी करता है। अब हमें पता है मीडियम में जाके फोर्स घट गया, बट इसने कंडीशन लगा दी कि फोर्स जो है वो अगेन F है, तो मुझे जो सेपरेशन बनेगा इसको मैं R' यहाँ पे ले लेता हूँ।
तो इस आर डैश की क्या वैल्यू होगी कि जो नया फोर्स है वो पहले वाले फोर्स के ही बराबर आ जाए। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ एफ डैश इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय, क्या लिखूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों में, मैं लिखूँगा यहाँ पे आर डैश स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फाइनली जब इनको हम सोल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या लिखूँ यहाँ पे मैं के साथ पुट करके, इसकी वैल्यू को मैं लिखूँगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी Q1 Q2 बाई 4 पाई के, सॉरी ये आएगा एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम, तो इसको लिखूँगा AR एप्सिलॉन नॉट और इंटू में आर डैश का स्क्वायर। सर यहाँ पे तो मीडियम का आएगा ना, अरे भाई ये ऐसे आएगा बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ मीडियम आएगा, पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, प्रीवियस कंसेप्ट से सोच के तो देखो आप। अब ये दोनों फोर्स इक्वल बोल रहा है तो इन दोनों को मैथमेटिकली इक्वेट कर दो एंड फाइनली वी विल गेट एफ इक्वल टू एफ डैश मतलब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डैश का स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी आर डैश इक्वल टू बन जाएगा आर बाय रूट ऑफ ई आर। बहुत ही मेन एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, ये सेपरेशन कैसे वेरी करता है ये वो आ गया फॉर्मूला यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं बात करूँगा कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही मेन बात बताना चाहूँगा। चलो थोड़ा लेंथी तो हो जाएगा बट ये क्लियर कर दूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2, आर डिस्टेंस पे इनको रखा गया है। अब अगर मैं Q1 को फिक्स करता हूँ ना, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है, इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है। अगर प्यारे बच्चों मैं Q1 को फिक्स करता हूँ और Q2 को फ्री करता हूँ तो बताओ मुझे यहाँ पे किधर लगेगा फोर्स, Q2 पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एंड सिमिलरली इफ वी फिक्स्ड Q2 then and we free Q1 then the force on Q1 in this direction, force on 1 due to 2। अब हम बात करते हैं, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ बोथ ऑफ चार्जेस एक्सर्टिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर पहले बात करता हूँ F21 को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे ये बात आती है, यहाँ बच्चों को डाउट रहता है इसमें यूनिट वेक्टर में। अगर मैं ऐसे लगा दूँ तो बन जाएगा मैग्नीट्यूड, जो हम पढ़ चुके हैं। अगर हमने बात की थी मैग्नीट्यूड की तो वो क्या होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर ये वेक्टर लगा दूंगा ना तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा। अब सारी बात इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ये है क्या यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, और इस यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, रेशियो होती है सिंपल वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर का हेड हमेशा वहाँ लगेगा। मैं मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो वेक्टर की, ये जो यूनिट वेक्टर से जो मैंने वेक्टर बना दिया ना यहाँ पे, इस वेक्टर का जो हेड है, हेड जो होगा ना ऐसे ऐसे होगा ना ऐसे, तो हेड हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ फोर्स हमें निकालना है, और टेल लगेगा जहाँ जिसकी वजह से हमें फोर्स निकालना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे जो मैंने किस पे निकाला फोर्स, 2 पे 1 की वजह से, तो इनके बीच में जो वेक्टर बनेगा, ये जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसका हेड किस पे लगेगा बताओ। मैंने अभी यहाँ पे बताया है आर वेक्टर का हेड हमेशा वहाँ लगेगा जहाँ पे हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है। मतलब आर वेक्टर का हेड इस पे आएगा, और किसकी वजह से, इस Q1 की वजह से। तो ये ऐसे यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा प्यारे बच्चों वेक्टर ऐसे।
और ये 1 से 2 आया कि 2 से 1, बताओ। ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ये 1 से 2 है कि 2 से 1? ये 1 से 2 है, तो इसको लिखूंगा मैं R12 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे मैं R12 लगाना पसंद करूँगा प्यारे बच्चों। तो F21 इक्वल टू आ जाएगा KQ1 Q2 बाय R क्यूब हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि इसको लिखूंगा ना मैं R12 सिंपल वेक्टर बाय R12 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू R, वो तो इनके बराबर ही रहेगा ना। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं सिमिलरली अगर मैं निकालूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर मुझे 1 पे निकालना पड़ जाए फोर्स, तो किसके इक्वल आ जाएगा? अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब बताओ, अब मुझे फोर्स इस पे निकालना है इसकी वजह से, तो अब जो वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा प्यारे बच्चों। अब हेड लगेगा 1 पे 2 की वजह से। अब ये 1 से 2 मैंने ड्रॉ किया ना, तो इसको लिखूँगा मैं 2 से 1 यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा R 2 से 1 यूनिट वेक्टर। फिर इसको लिख लेंगे सिंपल वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो KQ1 Q2 बाय ये R क्यूब हो जाएगा और R21 वेक्टर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर है? वेरी गुड। अब बताओ मुझे R12 तो है इधर के लिए, R21 है इधर के लिए, तो वेक्टर की सेंस में अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव के द्वारा बताया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R12 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R21। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो अब इस वैल्यू को जस्ट आप रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? बताओ क्या बनेगी, क्या वैल्यू बन जाएगी प्यारे बच्चों? यहाँ पे बताओ क्या वैल्यू बनेगी। अब इनको मैं 1 2 को किस क्या पुट कर दूंगा, -2 1। तो हमारे पास बताओ, अगर मैं लेके चलता हूँ F21 को, F21 को मैं क्या लिख रहा हूँ बताओ? इक्वेशन फर्स्ट देख रहा हूँ मैं, KQ1 Q2 बाई R क्यूब। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे था R12, और R12 को मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस यहाँ लगा देता हूँ, और ये R21 आ जाएगा। और ये ध्यान से देखो आप, ये किसके इक्वल आ गया? ये इक्वेशन आ गई 2, यानी कि F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो यहाँ से एक बहुत ही मेन रिजल्ट आपके सामने आया है। 2 पॉइंट चार्जेज exert force on each other by equal and opposite amount, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं है प्यारे बच्चों, ये तो 2 पे 1 की वजह से है, ये 1 पे 2 की वजह से है। तो इसका मतलब 3 पॉइंट आगे हमारे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन द फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। अगर ये 3 पॉइंट हम कंक्लूड करते हैं फाइनली, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कूलम्ब्स लॉ, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। ये सबसे बड़ी पहचान होती है एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स की। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसको लेके, फिर हम इसको आज सबमिट कर देंगे। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है उसको हम सबमिट कर देंगे प्यारे बच्चों। मान लिया ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, मैं एक बार इंक कलर चेंज कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अगर मान लिया हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, और इसको रखा गया है 5 5 4 पे। ठीक है, और एक अनदर है
ये मान लो 6 माइक्रो कूलाम ले लेता हूँ इसको, ये रखा गया है मान लिया 333 पे, ये दे रखें कोऑर्डिनेट। अब मैंने पूछा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 6, 3 वाले पे फोर्स बताओ 6 की वजह से। अब मैंने आपको बोला था ना, इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है प्यारे बच्चों। मैंने बोला था आपको जिस पे फोर्स निकालते हैं आर वेक्टर का हेड हमेशा उसी पे आता है, तो 3 पे निकालना 6 की वजह से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो आर वेक्टर बनेगा। तो आर वेक्टर को सबसे पहले हमें आर वेक्टर को ही निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखूँ इसको, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 5 - 3 इंटू आई कैप प्लस 5 - 3 इंटू जे कैप प्लस 4 - 3 इंटू के कैप। तो आर वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आई कैप 2 जे कैप इंटू के कैप, और इसका क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4 + 4 + 1 यानी कि √9 = 3 आ जाएगा। एंड फाइनली क्या लिखूँगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 6 = क्या लिखूँ, के की वैल्यू भी पुट कर दो चाहे आप, के 3 × 10⁻⁻6 × 6 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। ये तो बनता है ना, वेक्टर फॉर्म में बता दिया मैंने साथ के साथ। तो एफ वेक्टर किसके इक्वल लिखूँ प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। आप क्या लिखूँ, 9 × 10⁻9 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 27 इंटू आर वेक्टर क्या लिखूँगा, डायरेक्शन आ गई साथ में, ये डायरेक्शन आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो आप, ये आ जाएगा ना प्यारे बच्चों। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेकंड आर्टिकल। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और जितने भी उसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो न्यूमेरिकल बनते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, वो हम सब डिस्कस करेंगे इसमें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम जो सिस्टम रहेगा, ठीक है ना, स्टेबल और अनस्टेबल के लिए, और ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। फिर ये हमारा जो कूलाम लॉ का जो पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में आएंगे। तो प्यारे बच्चों अपनी तरफ से हम पूरी आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े रहना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सब को आप ये कन्वे कर दें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें फॉलो करें, ताकि हम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ आपके सामने आ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू बोल दें। थैंक यू प्यारे बच्चों, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।